Hello dear children, welcome to a new book that is Olympiad Mathematics by Galaxy Publications for grade 5. तो हम अपनी journey start करते हैं. Now here we have chapter number 12. The name of the chapter is Geometry. सबसे पहले करेंगे revision work and यहाँ पर हमारे पास है fill in the blanks. So the first one is a dash line is the shortest path between 2 points. So we write here straight, right? Next है a line that is not straight is called a curve line. Right here curve, a closed figure formed with 3 or more line segments is called polygon. We write polygon. And a polygon with 3 sides उसको क्या बोलते हैं? Very good. That's a triangle. And a polygon with 4 sides is called a quadrilateral. And a polygon with 5 sides, 5 side वाले polygon को क्या बोलते हैं? That is pentagon. And अब हम आगे चलेंगे. इसके बाद आता है polygon with 6 sides. तो 6 sides वाले polygon को हम बोलते हैं hexagon. And square and rhombus have all 4 sides equal. अगर आपका square है या आपका rhombus है उसकी 4 sides हमेशा equal होती हैं. Coming to identify the solids, ये है आपका cuboid because यहाँ पर आपके 8 faces हैं and opposite faces equal हैं. This is also a cuboid and ये है cylinder. We write cylinder here and this is square है यहाँ base में and यहाँ pointed square है, so we call it a pyramid. This is pyramid और इसको हम specifically square pyramid भी बोलते हैं. Now you have to find the perimeters of the given figure. तो पैरामीटर निकालने का क्या रूल होता है? जो आपका क्लोज फिगर है उसकी चारों साइड्स को ऐड कर देते हैं. सो वी ऐड 2 + 3 दैट इज 5, 5 + 3 इज 8 और 8 + 1.5 ये बना 9.5 सेंटीमीटर. इसी तरह इस फिगर को देखेंगे. नाउ दिस इज 1 और ये टोटल 3 है, दैट मीन्स ये 2 हो गया. दिस इज 2 सेंटीमीटर. जल्दी से ऐड करते हैं. 1 + 3 is 4, 4 + 6 is 10, 10 + 1 is 11, 11 + 5 is 16 और 16 + 2 हो गया 18. So this becomes 18 सेंटीमीटर. और ये ट्राइंगल है, तीनों साइड्स को ऐड करेंगे. 3 + 3 is 6 + 2, this becomes 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is true? Triangle has 3 vertices, 3 sides. True है, write down true. और quadrilateral की 4 vertices और 4 sides होती हैं. This is also true. Circle has 1 vertex. Circle का कोई vertex नहीं होता. So this is a false statement. And all the radii of the circle are of different length. Radii की length हमेशा same होती है. So this is also a false statement. The diameter of circle is double of its radius. जो diameter होता है वो circle के radius से double length का होता है. This is a true statement. अब आपने line segments draw करनी है. So you are going to draw these line segments in your notebook. Make sure आप ruler लेंगे, you'll take a pencil, sharp करेंगे और proper place पर उसको रखकर तभी draw करेंगे. आपकी drawing बिल्कुल perfect आएगी. Then find the perimeter of a square ground whose each side is 13.5 meter long. अब square है तो चारों sides equal होंगी and perimeter का मतलब होता है 4 sides को add करेंगे या हम 13.5 को 4 से multiply कर देंगे. 5 4 time is 20, 2 carry, 4 3 time is 12 and 12 + 2 is 14. And ये बन गया 54 meters. This becomes your answer. Next question is find the perimeter of a rectangular field जिसकी length हमें दी है
70 मीटर और ब्रेथ हमें दी है 50 मीटर। तो आप क्या करेंगे, पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे और फिर इसका डबल कर देंगे। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 70 प्लस 50, ये बना 120। सो 2 टाइम्स ऑफ 120 मीटर का मतलब हो गया 240 meters. This is the perimeter of your rectangular field. Now we move further. अब हम बात करेंगे plane की। We have many flat surfaces around us. अब टेबल टॉप की बात करें, वो फ्लैट होता है, वॉल फ्लैट होता है, ये स्क्रीन फ्लैट है, बोर्ड आपका फ्लैट होता है। तो बहुत सारे फ्लैट सर्फेस आपको नज़र आते हैं। The wall of the room in which you are sitting, रूफ, फ्लोर, ये सब आपके फ्लैट सरफेस होते हैं। इवन आपके हाथ में जो मैथ्स की बुक है वो भी फ्लैट सरफेस है। सो फ्लैट सरफेस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट ओनली पार्ट ऑफ अ प्लेन, बिकॉज प्लेन जो होता है वो चारों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। नाउ वी टॉक अबाउट प्लेन सर्फेसेस। डू सॉलिड्स लाइक स्फेयर, आप सिलेंडर की बात करें या कोन की बात करें, क्या उनके प्लेन सरफेस होते हैं? अगर हम स्फेयर को लेते हैं, दिस इज योर स्फेयर, स्फेयर का कोई भी प्लेन सरफेस नहीं होता। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट क्यूब और क्यूबॉइड, इसके 6 फ्लैट सरफेस होते हैं। सो दीज आर फ्लैट सरफेसेस, और क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के 6 फ्लैट सरफेस होते हैं। देन टॉकिंग अबाउट अ कोन, कोन में एक प्लेन सरफेस होता है जिसे हम फ्लैट सरफेस बोलते हैं एंड 1 कर्व्ड सरफेस। एंड व्हाट इज दिस? ये है एक सिलेंडर। सिलेंडर के 2 फ्लैट सरफेस होते हैं एंड ये जो कर्व्ड पार्ट होता है, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस। सो इट हैज 2 फ्लैट सरफेस and 1 curved surface. So a plane may be horizontal, vertical or even slanting. अगर आप blackboard को देखें या walls को देखें, so they are always vertical. Floor को देखें या roof को देखें, they are examples of horizontal. And sometimes आप लोग कई बार huts देखते हैं, उनकी slanting roofs होती हैं, so they are the example of plane surface which are slanting. Now what is point? Suppose एक शीट लिया आपने और उसके ऊपर पेन से या पेंसिल से एक मार्क लगाया, दिस मार्क इज अ पॉइंट, और इस पॉइंट को किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो द पॉइंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री which shows exact location and a point never has a length, ना उसकी लेंथ होती है ना उसकी ब्रेथ होती है, और वो बहुत छोटा होता है, एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू सी। और जब भी हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसे किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ पॉइंट ऑफ अ पेन, शार्प कॉर्नर्स ऑफ द ग्लास, ये जैसे पॉइंट है या ग्लास का जो शार्प कॉर्नर है वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। नाउ वी टॉक अबाउट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। लाइन क्या होती है? यहाँ पर हमने ये XY लाइन ड्रॉ की जिसके दोनों साइड्स में एरोज बना दिए। दैट मीन्स अ लाइन इज अ कंटिन्यूअस मार्क ऑन अ प्लेन विच एक्सटेंड्स एंडलेसली, उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, सो इट हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड, और वो बनता है बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स को जॉइन करके हमारी लाइन बन जाती है। और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों साइड में एरोज बनाते हैं। ये एरोज शो करते हैं कि इसकी फिक्स लेंथ नहीं है, और जब भी आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है तो लाइन को या तो हम किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं या किसी स्मॉल लेटर से। यहाँ पर हमने लिखा लाइन L एंड दिस इज लाइन XY। नाउ वी टॉक अबाउट a line, it can also be represented on a paper using small letter। and अगर आपको एक point दिया हुआ है, इस point से आपसे कोई पूछता है कितनी lines draw कर सकते हैं, तो आप observe करते हैं
कि इस पॉइंट से तो हम अनकाउंटेबल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट से हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसी तरह से अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट से पास होती हुई हमारी एक सिंगल लाइन नहीं हो सकती, बट यहाँ पर भी 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन ड्रॉ होती है। अब आते हैं लाइन सेगमेंट पे। हमने कोई भी 2 पॉइंट्स लिए और उन 2 पॉइंट्स को नेम दिया A एंड B और उसको ज्वाइन कर दिया। अब जब उसको हम ज्वाइन कर देंगे तो A उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और B उसका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा और हम उस लाइन को नेम करेंगे लाइन सेगमेंट AB। सेगमेंट का क्या मतलब होता है? सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। दैट मीन्स हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं। दिस इज लाइन सेगमेंट PQ, दिस इज लाइन सेगमेंट ST, दिस इज लाइन सेगमेंट MN एंड दिस इज लाइन सेगमेंट LM। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जस्ट लाइक लाइन वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। अब आते हैं रे पर। मार्क अ पॉइंट ऑन अ पेपर और उसको हमने नेम दिया M और उस पॉइंट से हमने एक एरो लगाकर एक रे ड्रॉ की। रे का मतलब वो एक साइड में एक्सटेंड हो रहा है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। सो M इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड N इज सम पॉइंट जिसके आगे एरो आ रहा है, ये शो करता है रे MN। M इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इसकी भी लेंथ मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता एंड ये दूसरी डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता है। सो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ रे एज इट्स extension is infinite in one direction. A ray has only one start point but no end point. Now हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास एक कैंडल है, एक टॉर्च है, सन है, उसकी जो रेज निकल रही हैं तो जो सोर्स है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अब हम कंपेयर करेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे को। तो लाइन सेगमेंट का हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। लेकिन अगर हम लाइन की बात करें उसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता ना कोई एंडिंग पॉइंट होता, इसलिए उसको हम बोलते हैं इट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। और रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। सो वी से दैट लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं बट लाइन और रे को हम मेजर नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट एक पेपर पर ड्रॉ की जा सकती है बट लाइन और रे एक पेपर पे ड्रॉ नहीं की जा सकती और उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। तो उसके साइड्स में हम एरो बनाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं जब हम उसको पेपर पर ड्रॉ करते हैं। एंड दिस इज अ सिंबल जब आप कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। दिस सिंबल इज टू शो द लाइन एंड दिस सिंबल इज टू शो द रे। सो आफ्टर दिस वी हैव अ एक्सरसाइज। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। A dash has no length and no breadth. This is point. And उसके बाद आते हैं a point is too small. बहुत छोटा होता है to be seen. It is represented on a paper by a dot. एक dot लगाते हैं, उसको हम point बोलते हैं. A dash has definite length and two end points. Very good. ये होता है line segment and a dash has one end point and it can be extended endlessly in one direction. This is ray. A dash has no end point and it can be extended endlessly in both directions. तो ये बन जाती है line. A dash is a flat surface with no limit or boundary. हम प्लेन की बात कर रहे हैं
and it extend endlessly in all the directions. उसके बाद कुछ ड्राइंग क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप खुद करेंगे, राइट, एंड इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे. एक्सरसाइज गॉट कंप्लीटेड. उसके बाद हम आते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस पर. तो उससे पहले जब हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की बात करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को किसी वन पॉइंट पर मीट करती हैं, उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं. सो हियर वी हैव अ लाइन AB, दूसरी लाइन LM है, और अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो वो किसी पॉइंट पर मीट करेगी. ये लाइंस हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट पर वो मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपने लाइन ड्रॉ की, लेकिन उसको कहीं पर मीट करने का स्कोप नहीं मिल रहा. दैट मीन्स उन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है. जैसे यहाँ पर आपने लाइन LM लिया, लाइन NO लिया, और इन दोनों लाइंस के बीच में जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा फिक्स आ रहा है, दैट इज 2 सेंटीमीटर. तो हम बोलेंगे कि ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है. और ये जो साइन होता है, दिस साइन इज अ साइन ऑफ पैरेलल. एंड अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आप अगर रेलवे ट्रैक देखते हैं, आप बुक्स की दोनों साइड्स देखते हैं, विंडो देखते हैं, आप डोर देखते हैं, उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. सो हियर वी हैव ड्रॉन अ स्क्वायर. यहाँ स्क्वायर में ये दोनों लाइन पैरेलल है. ऐसे ही AC इज ऑल्सो पैरेलल टू BD. यहाँ ऑब्जर्व करेंगे AB CD के पैरेलल है एंड AC इज पैरेलल टू BD. और ये आपका रेलवे ट्रैक है. ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है. अब आते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस में. अगर दो लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं और मीट करके एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो हम बोलते हैं these lines are perpendicular to each other. So when two lines meet each other and make an angle of 90 degree, ये कब होता है? जब आप ऐसे सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पर आपको L बनता हुआ नजर आएगा, और ये वाला जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है. जैसे आपने लिया लाइन AB और लाइन CD, दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ अल्फाबेट L फॉर्म कर रही हैं, तो हम बोलेंगे कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD या CD इज परपेंडिकुलर टू AB, एंड वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस. गॉट इट? नाउ कभी हम अपनी रियल लाइफ की बात करते हैं, तो आपकी किसी भी बुक का, टेबल का एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो हमेशा एंगल बनाती हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का. सो लुक हियर, ये साइड और ये साइड मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रही है. आपकी वॉल की एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू पॉइंट P. उसके लिए आप क्या करेंगे? आप सेट स्क्वायर निकालेंगे अपने पेंसिल बॉक्स से. एक सेट स्क्वायर ये है. इस सेट स्क्वायर में हमारे पास 3 एंगल्स हैं. दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री. और ऐसे वाला जो सेट स्क्वायर होता है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का होता है और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं 45 डिग्री ईच. नाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज सेट स्क्वायर्स टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. तो सबसे पहले हमने लाइन AB को ड्रॉ किया एंड वी हैव टेकन अ पॉइंट P. नाउ व्हाट विल यू डू? इस लाइन पर ये वाला सेट स्क्वायर पुट किया एंड यहाँ पर आपने रूलर को प्लेस किया. सो प्लेस वन ऑफ द परपेंडिकुलर एज ऑफ सेट स्क्वायर अलोंग लाइन AB एंड उसको टच करते हुए हमने स्केल को प्लेस कर दिया. नाउ कीपिंग दिस फिक्स, हमने क्या करना है? अपने स्केल को फिक्स रखना है और धीरे धीरे इस सेट स्क्वायर को ऊपर ड्रैग करना है. मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ. तो ये जब ये धीरे धीरे ऊपर ड्रैग होगा, इट विल रीच दिस पॉइंट और हमने यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर देना है. आपकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी लाइन AB के साथ
which is perpendicular to AB. So we say PQ is perpendicular to AB. Now we are going to learn to draw a parallel line. Parallel line के लिए फिर से सेट स्क्वायर लेंगे एंड किस तरह से ड्रॉ करेंगे और देखते हैं. सबसे पहले हमने XY लाइन को ड्रॉ किया एंड यहाँ पर XY के पैरेलल हमें LM लाइन को ड्रॉ करना है. सो व्हाट विल यू डू, हम अपने सेट स्क्वायर को मूव करेंगे नीचे और मूव करके एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो प्लेस अ स्केल टचिंग द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द सेट स्क्वायर एंड कीपिंग द स्केल फिक्स. हम किसको मूव करेंगे, हम मूव करेंगे अपने सेट स्क्वायर को और जिससे वो जाकर पॉइंट P को टच करेगा और जब वो पॉइंट P को टच करेगा तो वहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी. हमने ऑब्जर्व किया XY के पैरेलल ये आपकी लाइन LM ड्रॉ हो गई. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज. आप इस एक्सरसाइज को खुद ट्राई करेंगे एंड आई नो अब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए. सो यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ. और उसके बाद आती है आपकी मैथ्स एक्टिविटी. सो डू दिस एक्टिविटी. और इस एक्टिविटी में हम क्या सीख रहे हैं कि हमें ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और ट्राइंगल्स डिफरेंट हैं, लेकिन हमने जब इस ट्राइंगल्स के एंगल्स निकाले तो सब एंगल्स का सम फिक्स आता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आप जितने भी ट्राइंगल्स बना लेंगे उस ट्राइंगल्स के एंगल्स लिखेंगे, उसका सम निकालेंगे, आपको हमेशा आंसर मिलेगा 180 डिग्री. दिस इज ऑल यू हैव लर्न. और अब आ गई आपकी मेंटल मैथ्स की बारी. सो डू इट योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड. जल्दी ही न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं. टिल देन गुड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.